या सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम जून 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं. हम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 and which is a comprehension. A comprehension is given based on the appraisals, right? So we will just have a look on this for some few seconds. Then we will move towards the questions. Yeah, so first question we have is which one is correct statement? कौन सा statement इनमें से सही है? Okay, so if we look at the paragraph, then by elimination method we see demographic traits, they have a rating, they have influence on rating. Here it is mentioned, okay, जिसमें कि 36-year-old supervisor ranked a 62-year-old subordinate at the bottom of the department ranking and then fired him. This shows what? Demographic bias, right? तो ये गलत हो जाएगा, right? और we also get the information that age also has influence on rating. So this will also be wrong, right? Gender of the rating is not taken into consideration while rating. तो अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि this statement is also wrong. Gender has a somewhat consideration in rating. और जो correct statement है वो हो जाएगा age of rater and rating do have bearing on rating. Okay, so point number 3 will be our correct answer. Next, moving to question number 2. Yeah, question number 2 is choose the correct statement. Relationship plays no role in rating. Good relationship leads to lower rating. Better the relationship, higher is the rating. And strained relationship leads to higher rating. हमें correct statement choose करनी है, right? तो if we read the paragraph, तो ये एकदम विजिबल हो जाएगा कि हमारा आंसर होगा बेटर द रिलेशनशिप हायर इज द रेटिंग. अगर पीयर्स की रेटिंग, पीयर्स का एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो उनका रेटिंग भी अच्छा ही होगा, राइट? या हियर इट इज मेंशन गुड रिलेशनशिप टेंडर टू क्रिएट good appraisal experiences, bad relationship, bad ones. So from here we are getting this answer as point number 3. Moving to question number 3. Who are likely to give lower rating to their peer, right? Lower rating peers को कौन देता है? We have the options agreeable rater, liberal rater, conscientiousness rater and aged rater. Okay, so if we look at the paragraph, here we have in the second line, raters who scored higher on conscientiousness tend to give their peer lower rating, right? Because they were stricter. In other words, those were more agreeable give higher ratings. वो लोग काफी strict थे, तो rater who scored higher in conscientiousness tended to give peer lower rating. Okay, our answer will be point number 3. Yeah. Moving to question number 4. A rater has to rate an employee for the purpose of pay increase. Pay increase के लिए rater को rate करना है. Okay, तो वो rater क्या करेगा? उसका approach कैसा रहेगा? Okay. So in the first paragraph we see manager who tend to be more lenient when appraising subordinates for administrative purposes like pay raises than for development purposes. तो through this statement we get to know that managers ज्यादा lenient होते हैं अगर appraisal pay hike के लिए हो, right? और अगर development purposes के लिए हो तो उतना ज्यादा lenient नहीं होंगे. तो pay increase के लिए हमें समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा? Rater will have liberal approach. Okay, so point number 1 is our answer. Moving to question number 5. Two statements are given below. First statement will be called assertion and second will be called reason. Assertion क्या है? Rater's idiosyncratic bias accounts for the largest percentage of observed variance in performance rating. Okay, so this statement is directly given here in this paragraph, right? Rater idiosyncratic bias accounts for largest percentage of the observed variances in performance rating. Rater का जो inherent bias होता है उसी के कारण सबसे ज्यादा वेरिएंस आता है परफॉर्मेंस रेटिंग में.
ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. ओके, पोटेंशियल बायस इज वन रीजन टू यूज मल्टीपल रेटर्स. क्योंकि बायस हो सकते हैं, बायस का चांसेस होता है रेटिंग में, इसीलिए मल्टीपल रेटर्स को यूज किया जाता है, ताकि ये मल्टीपल रेटर्स रहेंगे तो बायसनेस को कम किया जा सके, राइट. सो बोथ द स्टेटमेंट वी सी आर करेक्ट, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट रिलेटेड, राइट. यहाँ पर बताया जा रहा है कि मल्टीपल रेटर्स को क्यों यूज करते हैं, और यहाँ पर एक सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रेटर्स का इडियोसिंक्रेटिक बायस के कारण वेरिएंस आता है रेटिंग में. तो बोथ आर रिलेटेड टू रेटर, बट बोथ आर नॉट एक्सप्लेनिंग देमसेल्व्स, राइट. दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, असर्शन एंड रीजन हैव नो रिलेशनशिप. नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म मैनेजमेंट एक्सप्लॉयटेशन वाज गिवन बाय. तो इसमें इसका आंसर यही होगा, पॉइंट नंबर 1, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इस टर्म को दिया था. ठीक है, अगर इन चारों थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी किसी सॉल्व कर सकते हैं, राइट. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, there are two sets that are given below. List 1 gives the list of terms and list 2 indicates their meaning. यहाँ पर ये जो कुछ terms है वो इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड टर्म्स है ये सारे, तो वी विल जस्ट सी व्हाट इज देयर मीनिंग. ओके, तो ऑर्बिटर डिक्टम का मतलब होता है अ कर्सरी रिमार्क. ओके, पोइजन का मतलब क्या होता है, पोइजन का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, राइट. मेंस्ट्रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड को मेंस्ट्रिया बोला जाता है इन आईपीसी. अल्ट्रा वायर्स इज बियॉन्ड वंस पावर. So we see all of these are correctly matched and thus our answer will be point number 1. Question number 8. As per the managerial grid given by Blake and Mouton, the leadership style focuses on low task and high concern for people. So low task and high concern for people, we will see. This is higher concern for people and here we have higher concern for task. Right, we have 4 quadrant and it is asking for low on task and high concern for people. So it is asking for this quadrant and this quadrant is country club management, right. So our answer will be point number 2. Question number 9. As per the provision of Trade Union Act 1926, who among the following shall not be the executive or office bearer of the trade union, right. So ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेयर और एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है. 2001 में एक अमेंडमेंट आया था ट्रेड यूनियन एक्ट में, उसमें भी ऑफिस बेयरर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उसके बारे में बताया गया था, राइट. सो इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, ये लोग भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स बन सकते हैं. अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन आल्सो बी द ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन. एंड इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल बॉडी, बिल्कुल लोकल बॉडी का भी कोई अगर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो भी बन सकता है एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन. बट अ मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बन सकता ऑफिस बेयरर, राइट. हमारा आंसर हो जाएगा point number 4. He cannot be eligible for executive or office bearer of trade union. Question number 10. There are different techniques to human resource accounting. Which one of the following is not human resource accounting technique? कौन सा human resource accounting technique नहीं है? Easy question है. Historical cost method भी हमने देखा है. ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मेथड होता है, जिसमें कि हम कैलकुलेट करते हैं कि इफ वी रिप्लेस वन एम्प्लॉय इन सर्टेन डिपार्टमेंट विद अदर एम्प्लॉय तो हमारा उसका कॉस्ट क्या आएगा. हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम देखते हैं कि किसी एम्प्लॉय को हायर करने में, ट्रेन करने में, डेवलप करने में
और कितने क्या कॉस्ट रहा है और इनफैक्ट उसका क्या आउटपुट रहा है उस एम्प्लॉय से, पर्टिकुलर एम्प्लॉय से। तो इस तरीके से ये सारे मेथड्स हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बट क्वालिटी कॉस्ट मेथड ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, राइट। सो आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 3, दिस इज नॉट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 11, Professor J. Barney and Professor Patrick Wright have developed a comprehensive model in 1997, okay, to establish human resource as a competitive advantage of the firm, ठीक है, which is known as, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा VRIO फ्रेमवर्क, ठीक है। VRIO फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसे 1997 में डेवलप किया गया था, रिसेंट डेवलपमेंट है बाय प्रोफेसर जे बार्नी एंड प्रोफेसर पैट्रिक राइट। इसमें VRIO में क्या होता है एक्चुअली? V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल, R स्टैंड्स फॉर रेयर, ठीक है, एंड I स्टैंड्स फॉर इनइमिटेबल, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको कॉपी नहीं किया जाए, ठीक है, इनइमिटेबल, एंड देन O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर बात होती है कि कोई प्रोसेस या कोई रिसोर्स अगर वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, इनइमिटेबल भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है, तो वो जो है वो पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव आउटपुट देगा फर्म को, ठीक है, इफ दिस ऑल द 4 थिंग्स गेट फुलफिल्ड, राइट। तो दिस इज व्हाट प्रोफेसर बार्नी एंड प्रोफेसर पैट्रिक डिजाइन इन VRIO framework. And then moving to question number 12, the appropriate government is empowered under section 7 of the Equal Remuneration Act 1976 to appoint authorities for hearing and deciding claims and complaints persons not below the rank of, ठीक है। तो Equal Remuneration Act 1976 में authorities को अपॉइंट की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। तो उसका रैंक क्या होना चाहिए? तो उसका रैंक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, उसका रैंक किसमें होना चाहिए? लेबर ऑफिसर से कम नहीं होना चाहिए, उसका रैंक लेबर ऑफिसर से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, पॉइंट नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट relating to participation of workers in management bill is wrong, ठीक। participation of management in workers bills के बारे में क्या गलत है? तो the bill was introduced in राज्य सभा on May 30, 1990, बिल्कुल सही है। In fact, this statement was asked again in 2016, जिसमें राज्यसभा की जगह लोकसभा लिखा हुआ था, and we had to cross this statement as wrong, right? So the questions in the same way do not repeat, but the concepts can repeat in some different way, right? The bill was the first comprehensive legislative effort towards promotion of workers' participation in management in the country. बिल्कुल सही। ये जो बिल आई थी 1990 में, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? राम विलास पासवान। दिसमें एक हेल्पिंग हैंड था राम विलास पासवान जी का इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में, और ये बिल जो है वो पहला कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव एफर्ट था टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, करेक्ट है। इट हैज अ प्रोविजन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ शॉप फ्लोर काउंसिल इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, इस बिल में ये भी प्रोविजन था, ठीक है। फिलहाल के लिए इस बिल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इस बिल को अभी के लिए साइडलाइन कर दिया गया है बिकॉज न्यू कोड्स आर कमिंग, राइट। The bill does not have any provision regarding the representation of workers on the board of management. बिल्कुल गलत, बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है ये। इस बिल में ऐसा ही प्रोविजन है कि वर्कर्स को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। जब भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब होती है तो उसका प्रिंसिपल यही होता है, लर्निंग बाय डूइंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन जॉब ट्रेनिंग मेथड, ओके। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो इस कोचिंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है कोचिंग में, राइट।
अंदर जब, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल और प्रिवेलेंट एग्जाम्पल है क्रिकेट से पता चल जाएगा. कोचिंग ऑन द जॉब ही होता है, लर्निंग बाय डूइंग. एंड देन जॉब रोटेशन. अगर जॉब रोटेशन देखें तो जॉब रोटेशन में भी इसलिए किया जाता है ताकि आप अलग अलग डोमेन के जॉब्स को देखें और सीखें. दैट इज ऑल्सो लर्निंग बाय डूइंग. अंडरस्टैंडिंग और रोल प्लेइंग, इसमें एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था अंडर स्टडी. ठीक है, तो यूजीसी नेट ने यहाँ पे सभी को 3 जो भी मार्क्स था 2 मार्क्स दिए हैं, राइट. क्योंकि यहाँ पर ये मिस्टेक है, अंडरस्टडी और रोल प्लेइंग. अगर अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग भी कोई जरूरी नहीं है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो. यहाँ पर अगर अंडर स्टडी होता तो भी ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता. और रोल प्लेइंग हमारा आंसर हो जाएगा. रोल प्लेइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ठीक है, रोल प्लेइंग एक तरह का सिमुलेशन टेक्निक है. The behavioral school of management has developed many behavioral theories, arranged the correct sequence of major contributors to the behavioral school from the earliest to latest. Right? यहाँ पे ये जो भी contributors है इनको अरेंज करना है. तो मैरी पार्कर फॉलेट ने जो भी contributions दी थी ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स के बारे में और पावर के बारे में. She is also called mother of modern management, right? मैरी पार्कर फॉलेट. तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत पहले का है. इनफैक्ट अर्ली 1900 और 1800 में 1800 अराउंड 1890 इनका वर्क है. ठीक है, तो इनका आई थिंक सबसे पहले हो जाएगा. अब्राहम मास्लो जी का कंट्रीब्यूशन कब आता है? इनका कंट्रीब्यूशन आता है अराउंड 1940s. एल्टन मायो, इनका अराउंड 1930s इनका कंट्रीब्यूशन आता है. डॉगलस मैकग्रेगर जी ने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दी थी विच वाज अराउंड 1960. और क्रिस एग्रीगेस जी ने मैच्योरिटी इमेच्योरिटी कंटिन्यूम के बारे में बताया था एंड दैट इज द मोस्ट लेटेस्ट. इट वाज अराउंड 1970. ठीक है, so based on this we'll see what is the answer. A, C, B, D, E, right? A, then C, then B, then D, then E. Point number 2 is our answer. Question number 16. Under the provision of Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act 1996, in order to apply for registration as a beneficiary under the Act, a construction worker must have worked for a minimum period of how many days in the preceding 12 months? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉट लेस देन 90 days. अगर बेनिफिशियरी के लिए एक बेनिफिशियरी एज ए बेनिफिशियरी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है किसी वर्कर को, तो इन द प्रेसिडिंग 12 months he must have worked for a minimum period of 90 days, right? इतना से काम इतने दिनों से प्रेजेंट होना ही चाहिए. So our answer point number 4 will be our answer. Question number 17. Who among the following have suggested that learning outcomes can be of 3 types, namely cognitive, skill based and affective, right? हमने एटीट्यूड में भी पढ़ा है. देयर आर 3 types of attitude, cognitive, behavioral and affective. तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज आस्किंग फॉर लर्निंग आउटकम, राइट? और यहाँ पर हम अगर सारे साइंटिस्ट का नाम देखेंगे तो लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया है क्रेगर, फोर्ड्स एंड सेलिस. इन्होंने बताया है कि लर्निंग आउटकम्स 3 तरह की हो सकती हैं, कॉग्निटिव, स्किल बेस्ड एंड अफेक्टिव. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. Under the provision of Payment of Bonus Act 1965, in order to determine the bonus of an employee who is not covered under the scheduled employment under the Minimum Wages Act, what amount of monthly wage from the following to be taken into consideration? ठीक है, अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात करें, ओके, तो अगर कोई एम्प्लॉय शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर्ड नहीं है जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट में बताया गया है, ठीक है, तो उसको मंथली वेज उसका कितना मंथली वेज कंसिडरेशन में लिया जाएगा, राइट? तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट यही बताता है कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे
20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्री जहाँ पे 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, they are eligible to get bonus, right? If and the wage ceiling is 21K as per the latest amendment. This is what Bonus Act is saying. So all the employees are getting covered here, right? All the employees of such industries will be getting bonus, right? तो यहाँ पर बस ये आपको इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है मिनिमम वेजेस एक्ट में. यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7,000 रुपीज. 7,000 रुपीज का मिनिमम वेजेस लिया जाएगा कंसिडरेशन में, राइट, फॉर दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट. ओके. Question number 19. The authority constituted by central government under the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 to decide the cases regarding the determination of money due to be recovered from employees is, क्या होगा इसका आंसर? EPFAT. Employees Provident Fund Appellate Tribunal. This tribunal consists of only one member, right? And what is the purpose of EPFAT? Recovery regarding the determination of money due to be recovered from the employers. Employer से जो मनी रिकवरी बाकी है उसके लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए EPFAT का कॉन्स्टिट्यूशन होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 20. Process orientation concept of management was developed by numerous authors. Who among the following is not associated with this concept? Right? प्रोसेस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारे ऑथर्स ने इसके बारे में बताया है, राइट. तो किसने इनके बारे में नहीं बताया? प्रोसेस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट के बारे में किस ऑथर ने बात नहीं की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्रीच ने भी बात की है, ये हमें पता है. जॉर्ज, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको सारे थिंकर्स के बारे में पता ना हो. ओके, तो थोड़ा गेसवर्क किया जा सकता है या फिर आपने कितना पढ़ा है, हो सकता है आपने सबके बारे में अगर पढ़ा होगा तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस वेल. और हमारा आंसर इसमें हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, लॉरेंस ए एप्ली. ओके. क्वेश्चन नंबर 21. एन indifference curve between income and leisure, okay, shows. What does an indifference curve shows between income and leisure? We will see. Various combination of income and leisure which gives different level of satisfaction. No. Leisure और income का बहुत सारा combination we see in this curve, right? Two combinations are this one and this one. More we can also draw. तो जितना भी combination होता है leisure का और income का, वो indifference curve में सबकी value क्या होती है? बराबर होती है. All the points here, point number 1, 2 and 3, all these 3 points will give equal satisfaction to the user, right? Various combination of income and leisure which give equal satisfaction. बिल्कुल सही. यहाँ पे इस कर्व में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेजर और इनकम का बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि यूजर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा, राइट. सेम अमाउंट ऑफ इनकम एंड लेजर एट ईच पॉइंट ऑन इट विच गिव्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. नहीं, ये भी गलत है. सेम अमाउंट ऑफ इनकम एंड लेजर हर एक पॉइंट पर सेम, अगर इनकम और लेजर बराबर बराबर भी रहे, it gives different level of satisfaction. No, it will also give equal level of satisfaction. Same amount of income and leisure which gives same amount of satisfaction. ऐसा भी कुछ नहीं है. हमारा आंसर इसमें सबसे appropriate यही है, point number 2. This is what is exactly the meaning of income and leisure in indifference curve. Question number 22. Occupational diseases are those which arise out of and in the course of employment. In the course of employment बहुत सारे diseases होती हैं जिसे occupational diseases बोला जाता है, right? We have to match name of the disease and types of workers. Okay. तो mercury poisoning किससे होती है? Barometer worker refiners of gold and silver. Okay. Anthrax
एंथ्रैक्स में यूजुअली एंथ्रैक्स उन वर्कर्स को होता है जो कि वुड एंड हेयर ब्रिसल्स, वुड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके पास उन्हें एंथ्रैक्स हो जाता है, राइट। बेगेसियोसिस बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा है, शुगर कैन डस्ट से होता है बेगेसियोसिस, राइट। और बिस्नोसिस किससे होता है? कॉटन से होता है मोस्टली। तो कॉटन इंडस्ट्री, जो कि यहाँ पर टेक्सटाइल वर्कर लिखा हुआ है। सो बेस्ड ऑन दिस मैचिंग आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 2. Yeah. Coming to question number 23. Who among the following is authorized by the chief inspector by a special order in writing to enter the mine for the purpose of surveying, labeling and measuring the mine or part there as of the provision of Mines Act 1952? Mines Act 1952 में कौन सा ऐसा पर्सन है who is authorized by chief inspector? He can enter the mine and what he will do? He will survey it, he will level it, he will measure the mine, right? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल ऑफिसर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने माइंस एक्ट के लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। स्पेशल ऑफिसर ही कैन कम टू विजिट माइंस एनी टाइम and for how many days he will give notice? He will give notice to occupier for 3 days. After 3 days job giving notice, he will come, he will see if everything is well labeled, if the mine is at proper depth, everything he will see, he will come and check, right? And in case of emergency, he may come by giving the notice of 1 day, okay? 24. Labor welfare is dependent on certain basic principles. Which of these principles has its own content? 2 lists are given. In list 1, principles are given, and in list 2, the content of principles are given. We have to match it. So, principle of adequacy of wages, it will be point number 2. Employer should not bargain labor welfare as substitute to wages, right? लेबर वेलफेयर को एज अ सब्स्टिट्यूट हम नहीं कंसिडर कर सकते। एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता कि वो कोई भी लेबर वेलफेयर एक्टिविटी कैरी आउट ना करे और वेज को बढ़ा दे, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्री पर्सनलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी शुड ऑल्सो बी द गोल ऑफ लेबर वेलफेयर। एज अ पर्सन वी हैव टू हेल्प द लेबर्स टू डेवलप। Principle of democratic value. Principle of democratic value will be coming. Yeah. Point number 3. Consultation with and the agreement of workers in formulation and implementation of welfare services. बिल्कुल clear है. Principle of integration. Principle of integration से point number 1 is matching. Welfare is a total concept. Coordinated approach will promote healthy development. बिल्कुल सही है. So as per this matching, our answer will be point number 1. Question number 25. A technique by which a new employee is adjusted into changed surrounding and introduced to practices, policies and purpose of the organization is called. ठीक है, तो क्या होगा इसमें? प्लेसमेंट होगा, इंडक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा या डेवलपमेंट होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडक्शन। इंडक्शन में ही ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, और इंडक्शन के थ्रू ही नए एम्प्लॉय को चेंज सराउंडिंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है, उसके सुपरवाइजर से, कलीग से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स।